Okay. So first of all, just to give you a brief idea about positive and negative development essays, there are two types in this. I categorize into two categories. One in which reasons are asked, and the other one in which reasons are not asked. So let me give you an example. More and more people want to buy famous brands of clothes, cars, and other items. What are the reasons? Do you think it is a positive or negative development? So there are two parts to the question. They're asking the reasons why people are buying famous brands, and then they're asking you, do you think it is a positive or a negative development? So this is the first type. The second type, they don't have that reasons part. So directly after the question, they ask you, do you think it is a positive or a negative development directly after the statement? For example, it is expected that there will be a higher proportion of old people than young people in the future in some countries. Do you think it is a positive or negative development? So they have not asked the reasons here. Now today we are going to cover both the approaches. That is, I've taken 3-4 essays so that I can try to cover both the types and I can cover how to approach them in different ways. Now before I move further, I want to tell you some basics about this essay. A positive negative development in general, don't consider the reasons part. You can attempt it as one-sided as well as partially. Both are open to you. That and it's this is one of the major differences with the advantage disadvantage essay. The advantage disadvantage essay is always partial. Always partial means in that essay you have to write both the sides. You have to write advantages as well as disadvantages. But the positive negative development essay can be written one-sidedly, meaning you can just make it a positive development. You don't need to mention a single negative. Or you can make it a completely a negative development and you don't need to mention a single positive. So both the approaches are possible here. And I don't tell you to go with one approach, go one-sided or partial. I always tell my students, let the points dictate what you should do. If the points are in favor of a partial essay, go partial. If points are in the favor of a one-sided essay, go one-sided. Let the essay determine, let the points determine. Don't make a predetermined idea. I'll go one-sided or I'll do that. Don't do that. Not a good idea. Okay, so let's start with the first reason. Okay, the first essay, sorry. So the first essay, first they've asked reasons. What are we going to do? Nothing. We are going to just brainstorm the reasons. And it's a very easy essay. Intentionally took the first essay to be slightly easier. The next essays are slightly more tougher. So there we can have you can spend a bit more time, but here I think it's easier and I want you to be involved. So I don't want you to have a blank, uh, you know, have a blank face and not contribute. So very easy essay. Why do you think we like to buy branded clothes or branded items? Not just clothes. We want to buy branded, everything we want to have branded. We are not going for, locally made things or non-branded things. We don't buy those. So why do you think this is happening? Anyone contribute? No points. Yeah. Tell me, Ansh. For show. Very good. So branded clothes people buy to show off. I agree with that. Branded items का एक reason है. चलो, I agree with him. Okay. Next. How to elaborate we have to discuss, but the point in itself is correct. I agree with the point. Next. Anyone else? Sir, stay updated with fashion trends due to influencer. Also, Stay updated with the fashion trends. But why do you think only branded clothes can show off trends? Why can't why can't non-branded clothes be trendy? They can be Sir, trendy. because influencer do more influencer marketing. follow their Marketing. trends. Okay, so you are saying advertising, celebrity and Celebrating influencer buy clothes. celebrity endorsements is the word I wanted to say. Endorsements means उनको वो celebrities आके उनको वो promote करते हैं. Celebrities ads में आते हैं बोलते हैं कि मैं इन brands को पहनता हूँ
तो इनको सेलिब्रिटी की एंडोर्समेंट्स मिलती हैं. सो दैट इज व्हाई पीपल बाय देम, राइट? एनी अदर रीजन? क्वालिटी फिर। क्वालिटी. क्वालिटी की जगह ना मैं ये बोलूंगा परसीव्ड क्वालिटी. क्या डिफरेंस है इसका लवप्रीत, परसीव्ड क्वालिटी और क्वालिटी में? परसीव्ड सर पता नहीं मैंने। परसीव्ड क्वालिटी का मतलब है कि हमें लगता है, हमारा अच्छा। व्यू है, हमें लगता है कि हाँ अगर वो ब्रांडेड है तो उसकी क्वालिटी क्या है? हाँ। बढ़िया है। ओ, बढ़िया है. बढ़िया बढ़िया। जरूरी नहीं है ना ऐसा. देख, नॉन ब्रांडेड चीज की भी क्वालिटी क्या हो सकती है? अच्छी. पर अच्छा। हमें लगता है कि जैसे लेवाइस की जीन्स है तो दिस इज गोइंग टू बी बेटर इन क्वालिटी देन अ नॉन ब्रांडेड जीन्स, विच इज नॉट एब्सोल्यूट, विच इज नॉट ट्रू, विच मे बी रॉन्ग, हाँ। इट मे बी राइट. यस। इट इज अ परसेप्शन. हमारे मन में बैठ गया है कि ब्रांड्स आर बेटर, तो ये बैठा हुआ है. ठीक है. सो I think these three are the strongest points, and I agree with you on all three of them. So I'm going to keep all three of them. सर Now, बड़े दसोगे भी मैं तुझे एक्सप्लेन कितना करूंगी। बस यही बोलूंगा कि people believe that branded products are better in quality than non-branded. People believe, okay? ओके। Okay, so they believe that they last longer. ये वाली चीज़ें ज़्यादा लंबे समय तक चलेंगी, कम खराब होंगी. Maybe they also believe that they can easily, मतलब the replacement would be easier. कि इनको रिप्लेस कराना भी, अगर ये नहीं काम करेंगी तो इजीली क्या भी हो जाएंगी, रिप्लेस हो जाएंगी. ब्रांडेड में ऐसा हो जाता है. कस्टमर केयर नंबर होते हैं. तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे लिख देंगे कि उनको लगता है ये कंफर्टेबली बेटर इन क्वालिटी है. और मतलब अगर कोई प्रॉब्लम भी आएगी तो इजी होगा उनके लिए रिप्लेस करना. क्लियर? इजी टू रिटर्न। हाँ, इजी टू रिटर्न, इजी टू रिप्लेस. ठीक है. चलो, लेट्स मूव ऑन. विल ऑल्सो डिस्कस फर्दर हाउ टू डिस्कस इट फर्दर. मैं करता हूँ, वो भी करता हूँ कि कैसे मैं प्रॉपरली लिखूंगा. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट. ठीक है. डू यू थिंक इट इज अ पॉजिटिव और अ नेगेटिव डेवलपमेंट? अब जब ये क्वेश्चन पूछा जाता है ना, व्हाट आर यू एक्चुअली राइटिंग? यू आर एक्चुअली राइटिंग नथिंग बट द एडवांटेजेस एंड द डिसएडवांटेजेस. दोनों नहीं लिखने होते, दोनों भी लिख सकते हैं, बट तुमने यही लिखना है. तो अब तुम सोचो एडवांटेजेस क्या है इसके, कि ज्यादा से ज्यादा लोग ब्रांडेड चीजें खरीद रहे हैं, और इसके नुकसान क्या है, बताओ. सर पॉजिटिव लेटेस्ट ट्रेंड फॉलो कर सकते हैं। फायदा क्या हो रहा है उससे? सर क्वालिटी ये होता है, मतलब सर बेनिफिट, मैं। लॉन्ग लास्टिंग चलेंगे वो। हाँ लॉन्ग लास्टिंग। नहीं, तुम तो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स की वो बता रहे हो ना मुझे फायदे. मेरे को ब्रांडेड प्रोडक्ट्स के फायदे नहीं बताने, मुझे इस चीज़ के फायदे बताने कि ज़्यादा लोग ब्रांडेड चीज़ें खरीद रहे हैं. तुम क्वेश्चन ही बदल रहे हो. मैंने नहीं पूछा एडवांटेजेस बताओ ब्रांडेड प्रोडक्ट्स के, मुझे इस डेवलपमेंट के फायदे बताने हैं. डेवलपमेंट ये हुई है कि ज़्यादा लोग ब्रांडेड मल्टीपल। चीज़ें खरीद रहे हैं. डू यू गेट द पॉइंट? यस सर। दैट इज इट. इकोनॉमी बूस्ट हो रही है सर। हाँ, इकोनॉमी बूस्ट हो रही है. दैट इज अ गुड पॉइंट. इट हैज अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमी. It is creating more jobs. यस। Done. That will be a good point. Tell me the drawbacks now. हाँ। वेस्ट ऑफ मनी बाय Hmm? पीपल। Waste of money की जगह better would be overspending. यस, ओवरस्पेंड। People are spending beyond their budget. यस। Don't have the. यस। सर जो लोकल ब्रांड है वो खत्म हो रहे, डिमोलिश हो रहे हैं। हाँ जी। मेरी ना एक बात सुना करो. पता है, एक पॉइंट जब मैं डिस्कस कर रहा होता ना, मुझे पता है तो मैं एक्साइटमेंट होती है नेक्स्ट पॉइंट की, फिर पहले वो खत्म होने दिया करो. ठीक है. सो लेट्स जस्ट, अभी ये खत्म नहीं हुआ था, और पता है क्या है, आई कैन नॉट फिनिश एंड देन यू वुड नॉट नो हाउ वुड आई एक्सप्लेन इट फर्दर. तो मेरे को पूरा बोलने दो ताकि तुम्हें ये भी पता चले मैं कैसे इस पॉइंट को एक्सप्लेन करूंगा. लिसन मो. तो इसको सुनो, फिर अगला पॉइंट बोलेंगे, डिस्कस करेंगे. खत्म थोड़ी हो रहे पॉइंट्स. पहले ओवर स्पेंडिंग के साथ मैं बोलूंगा पीपल गोइंग टू डेट. पीपल लोन्स लेके ले रहे हैं, लाइक क्रेडिट कार्ड डेट बढ़ रहा है. वन ऑफ द रीजंस इज पीपल आर गोइंग फॉर ब्रांडेड प्रोडक्ट्स इवन दो दे आर नॉट इन देयर बजट, इवन दो दे आर बियॉन्ड देयर पॉकेट. तो उनकी पॉकेट के बियॉन्ड है, मतलब वो नहीं अफोर्ड कर सकते, बट वो डेट में जाके भी वो लोन्स लेके भी ब्रांडेड प्रोडक्ट्स ले रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, थिंक ऑफ हाउ मेनी पीपल यूज EMIs टू बाय आईफोन्स टुडे. डू यू नो मेनी पीपल डू दैट? यस सर। क्या? सो ये वाले पॉइंट्स यहाँ पे आने, एग्जाम्पल्स भी हैं, इसको बताना है. तो इट्स बैड फॉर द, यू नो, सो इट्स ओवर स्पेंडिंग ज़्यादा हो रही है. ठीक है, समझ में आया. और इससे डेट क्रिएट हो रहा है. पीपल आर नॉट एबल टू पे ऑफ देयर डेट्स. यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन करना है कि पीपल इन चीज़ों के लिए, पीपल आर टेकिंग लोन्स टू बाय दीज प्रोडक्ट्स, दे आर बियॉन्ड देयर पॉकेट.
कोई ज़रूरत नहीं है उनको आईफोन लेने के लिए, उनके लिए एक नॉर्मल फ़ोन भी चल जाता। 25,000 तक का फ़ोन मैं मानता हूँ कि ठीक है, ज़रूरत है उसके उसके अंदर फीचर्स चाहिए होते हैं। 25,000 के अगर आप ऊपर ले रहे हो तो तुम फीचर्स के कारण फ़ोन नहीं ले रहे हो, तुम शो ऑफ के लिए ले रहे हो। दिस इज़ माई पॉइंट ऑफ व्यू। मैंने ये पूरी रिसर्च करी है। 25,000 में वो सारे फीचर्स आ जाते हैं जो तुम्हें चाहिए। सो उसके बियॉन्ड अगर हम फ़ोन ले रहे हैं वो शो ऑफ के लिए, वो ब्रांड के कारण है और वो फजूल खर्ची है। सो ओवर स्पेंडिंग हो रहा है, डेट बढ़ रहा है, दैट इज़ द पॉइंट। सेकेंड पॉइंट जो तुमने बोला था, यस, वेरी गुड। many local manufacturers who cannot spend enough money to create a brand, who cannot spend on or cannot spend on brand building are closing down. So they are closing down because वो brand building नहीं कर पा रहे, तो वो बंद हो रहे धीरे धीरे क्योंकि उनका ब्रांड नहीं बन पा रहा। सो लाइक दस अब वेरी गुड एग्जाम्पल, इफ यू कम फ्रॉम फगवाड़ा, my city, you have JCity. So JCity couldn't spend on its brand so much. उसकी ब्रांड की इतनी एडवर्टाइजिंग नहीं है, तो अब उसकी सेल कम हुई है। ऐसे नहीं है that people are buying clothes from JCity because of that reason, because it cannot spend. उसकी एड नहीं आ सकती, वो पैसे नहीं खर्च सकता ब्रांड बनाने में। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, टेल मी। ब्रांड से डिस्क्रिमिनेशन बढ़ना, डिस्क्रिमिनेशन would not be a good point to, would not be an easy point to explain, and I don't think it increases discrimination. ਸਰ ਲਾਈਕ ਸਟੇਟਸ ਵਗੈਰਾ ਲੋਕ ਸ਼ੋ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬ੍ਰਾਂਡ ਇਦਾਂ ਵਧੀਆ ਵਾ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸਮਥਿੰਗ ਡਾਊਨ ਮਤਲਬ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ੋ। I agree with you, वो पॉइंट बहुत अच्छा है, पर बट हाउ वुड बी राइट है, डिस्क्रिमिनेशन वर्ड नहीं आएगा ना उसको। डिस्क्रिमिनेशन तो होता है भेदभाव करना, वो तो यू नो पर हम क्या बन रहे हैं, मतलब हम लोगों को जो तो कहना चाहती है ना, पीपल आर बिकमिंग मटीरियलिस्टिक एंड पीपल जज अदर्स on not their personality but on the things they possess। हम लोगों को जज करते हैं उनकी चीज़ों के बेसिस पे कि उसके पास तो आईफोन है, ठीक है। आई रिमेंबर वंस माई मदर वॉज कमिंग बैक फ्रॉम दिल्ली एंड उनको कोई काम करना था, तो उनके पास आईफोन था, मैक पे वो काम कर रहे थे अपने मैक पे, और हाथ में उन्होंने एप्पल आई वॉच पहनी हुई थी। तो आई हैव नेवर नोटिस्ड। तो साथ वाला बंदा मेरे मदर को कहता, 2 लाख रुपए तो आप मतलब पहन के चल रहे हो। मतलब दिस वॉज सच एन ऑड थिंग, मतलब आई वुडेंट हैव नोटिस दिस, बट उस बंदे ने ये बात नोटिस करी। हमें तब जाके रियलाइजेशन हुई कि मतलब इट माइट बी रॉन्ग, मतलब लोगों को गलत दिख रहा होगा कि ज़्यादा ही पैसे, तो यू शुडंट बी डूइंग दैट। बट ऐसे है, देखो सोसाइटी, वी आर जजिंग पीपल ऑन व्हाट दे पोजेस, कि उनके पास क्या है, rather than what they are, कि वो क्या हैं, उन्होंने क्या करा है लाइफ में। हम उनको इस बेसिस पे जज करते हैं, उनकी सक्सेस भी इस बेसिस पे जज करते हैं। तो दैट इज़ अ पॉइंट दैट यू आर ट्राइंग टू से, ठीक है, आई कैन एग्री, डोंट कॉल इट डिस्क्रिमिनेशन। मैंने कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करा, उसके पास कोई कम फ़ोन है। हाँ, मैं ये मान सकता हूँ कि वो ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा रिच, आई कैन जज दैट पर्सन, बट आई वुडेंट हैव डिस्क्रिमिनेटेड कि उसके साथ भेदभाव करा। तो डिस्क्रिमिनेटेड नहीं, बट या वी जज पीपल। आई एग्री विद दैट। ओके, ओके सर। ठीक है। सो मैं ये बोलूंगा कि तुम इसको वन साइडेड ही बना दो, बिकॉज इकोनॉमी वाला पॉइंट भी तुम अच्छे से नहीं कर रहे हो, तो यहाँ पे मटीरियलिस्टिक सोसाइटी बन रही है। वो सर ओवर स्पेंडिंग के साथ ज्यादा अच्छा बनेगा, इकोनॉमिक की इकोनॉमी वाला, ज्यादा। हाँ, यस इकोनॉमी वाला ओवर स्पेंडिंग हो रहा है ना, तो मैं तो नेगेटिव इम्पैक्ट कह रहा हूँ, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ लेट्स यस दैट पॉइंट। सो अब मैंने क्या करा, आई हैव डिसाइडेड दैट आई विल गो वन साइडेड। बेसिकली मेरे लिए ये नेगेटिव डेवलपमेंट है, मैंने इसके फायदे नहीं बताने हैं, मेरे को नहीं लगता है इसके फायदे हैं। आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस द एडवांटेजेस एट ऑल, and I'm going to, in the first paragraph I'm going to mention the reasons, and in the second paragraph I'm going to mention the disadvantages। मेरी planning हो गई है ऐसे कि that is how we plan the essay। Now let me show you the structure of the essay। अभी मैं structure कर रहा हूँ, next time I want the structure to come from you। So when I'm writing, please pay attention so that when I ask you the question to repeat the structure, you're confident in it। मतलब that is what's important, ठीक है। सो सबसे पहले हम इस ऐसे में क्या करते हैं, वी जस्ट इंट्रोड्यूस द टॉपिक अगेन। सो द टॉपिक इज दिस, मोर एंड मोर पीपल
we just introduce the topic to the examiner. So for example, I would say it is true that, and I'll just copy paste this. I'm going to paraphrase this for you. तो इसको paraphrase करना है. More and more people के लिए मैं सबको बता रहा हूँ. You can write Number of people, Group of increasing number of people. increasing number of people. And Yes. increasing number of people prefer To buy clothes, cars, and other items no. I want of to say famous prefer buying. brands. ठीक है. Prefer buying branded products. ठीक है. Okay. Yes. Okay. Okay. Prefer buying instead of, or that's it. अब मेरे को ये नहीं लिखनी चाहिए क्लोथ्स वगैरह मेरे को नहीं लिखना है. It doesn't matter. तो people prime branded products. अब इसके बाद लिखूंगा. देखो मेरे से क्वेश्चन में क्या पूछा है. मेरे से क्वेश्चन में दो चीजें पूछी हैं. व्हाट आर द रीजंस. सो यहाँ पे बोलूंगा देयर आर मेनी रीजंस, और यू कैन राइट देयर आर अ नंबर ऑफ रीजंस फॉर दिस डेवलपमेंट. इस डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे रीजंस हैं. दैट्स इट. एंड नाउ आई एम मेकिंग टू नाउ आई एम गोइंग टू राइट बट आई बिलीव it has a negative impact on the society. क्योंकि मैं वन साइडेड जा रहा हूँ. बहुत सारे रीजन ऐसा क्यों हो रहा है, बट मेरे को लगता है इसका नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है सोसाइटी पे. नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है सोसाइटी में इज अ यू नो पैराफ्रेजिंग फॉर दैट इट इज अ नेगेटिव डेवलपमेंट. मेरे को डेवलपमेंट वर्ड दोबारा रिपीट नहीं करना था. यहाँ पे लिखा है तो मैंने बोल दिया. मेरे को लगता है इसका इस चीज़ का नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है सोसाइटी पे. दैट्स इट. That's my whole introduction. Does anyone have a doubt in the introduction, how to write the introduction in this case? I know it's one-sided now and there are reasons asked. इसीलिए मैंने 4-5 लिखे. बाकी जब थोड़ा बहुत चेंजेस होंगे हम तब कर लेंगे. तो अभी ये मत पूछना अगर ऐसे होगा तो कैसे करना है, पार्शियल होगा, वो आ जाएगा. इस ऐसे के लिए करो. Is this introduction clear? When you have to write reasons and when you have to make a one-sided essay. Is it clear? Yes or no? Yes, sir. Okay. Yes. Chalo. Now let's move on. The first paragraph, we are discussing the reasons. So I'll start with reasons. Okay. So I'll start the main reason why. Whenever you start the paragraph, a new paragraph, always mention the topic again. It is a sign of good English. If you want to write good, any language, not just English, when you start off a new paragraph, you have to assume that the person forgot the topic. You don't want that to happen क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ी ब्रेक लग जाती है. पैराग्राफ एंड हो रहा है. You don't want to carry a pronoun from the last paragraph. That's a bad approach. Don't carry a pronoun from the don't write there are many reasons why this is happening. This क्या है, मुझे भूल चुका है. So write it again. The main reason why people prefer or like buying products from famous brands is that. So यहाँ पे तुम्हारा पहला रीजन आ जाएगा कि पहला रीजन क्या है, इज टू शो ऑफ. अब इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं कैसे करना है. इज टू शो ऑफ. यहाँ पे शायद दैट भी ना आए. ओके, देन यू कैन मेक अनदर रीजन इज दैट इसी पैराग्राफ में एंड राइट द सेकंड रीजन एंड देन यू कैन राइट लास्टली और अपार्ट फ्रॉम दिस और फाइनली एनीथिंग फर्दरमोर. कुछ भी चलता है. तुम्हारा एक और कनेक्टर. So basically you are going to list down 3 points, 3 reasons, 1 paragraph, that's it. कुछ और नहीं करना. If anyone has a doubt here, please ask me how to write the first body paragraph. Just the approach. We are not discussing how to write the points. वो एक point मैं लिख के दिखाऊंगा just to give you clarity also. ठीक है? Okay. उसके बाद चलते हैं next paragraph. Next paragraph you are going to write what? The drawbacks. Now I want to tell you something. यहाँ पे तुमने reasons लिखे हैं, इसके बाद तुम drawbacks लिख रहे हो, तो यहाँ पे कौन सा connector आएगा? And remember, I did not start the first BP with any connector. मेरा कोई connector नहीं आया. Don't artificially put connectors जहाँ पे कोई ज़रूरत ना हो. वो ऐसे start हो रहा है. There is no need of a connector. I am not putting a connector in the reasons paragraph. Do not put a connector there. मैंने नहीं डाला. There is a reason. It doesn't suit. मैं कोई भी तुम्हें 9 बैंड ऐसे दिखाऊंगा उसमें नहीं होगा. ओके, मूविंग ऑन. चलो बताओ. नेक्स्ट पैराग्राफ. व्हाट वुड बी माय कनेक्टर हियर? हाउ वुड आई स्टार्ट दिस पैरा जब मैंने डिसएडवांटेजेस लिखने?
Anyone? What would be my connector? On another hand. बिल्कुल ठीक है। अंश, ऑन द अदर हैंड का मतलब क्या होता है? बता, मीनिंग बता। What's the meaning of on the other hand? सर जैसे Besides this, Besides this there's a listing connector. वो तब यूज करते हैं जब एक पॉइंट के बाद आपने एक और पॉइंट बताना हो। जैसे मैं यहाँ पे फर्दर मोर की जगह besides this यूज कर सकता था। It cannot come for negatives. So वो listing connector है, वो पॉइंट्स को लिस्ट करने वक्त यूज होता है। It won't suit here. Okay. Does on the other hand suit? How many of you agree with on the other hand? देखो, I really thought कि तुम्हें पता है ऑन दी अदर हैंड का मतलब होता है टोटली ऑपोजिट। और मुझे पता है कि नेगेटिव्स का उल्टा क्या होता है? पॉजिटिव्स। क्या तूने पहले पैराग्राफ में पॉजिटिव्स लिखे हैं अंश? पहले पैराग्राफ में नेगेटिव सर। तूने नहीं, बहुत पहले बॉडी पैराग्राफ में तूने क्या लिखे हैं? क्या लिखे हैं अंश? सर रीजंस। हाँ, तो अब तू ऑन दी अदर हैंड लिख रहा है, और ऑन दी अदर हैंड लिख के तू क्या लिखने वाला है? ऑन दी अदर हैंड वाले पैराग्राफ में तूने क्या लिखना है? सेकंड पैराग्राफ में हमने क्या लिखना है अंश? सर सेकंड पैराग्राफ में वन साइड जैसे पॉजिटिव, सेकंड पैराग्राफ में भी कहाँ पॉजिटिव पे क्या लिखेंगे। लिखना है? इस ऐसे में जो हमने प्लान करा हमने क्या लिखना है? नेगेटिव। नेगेटिव्स लिखने हैं। चल अब मेरे को बता, ऑन दी अदर हैंड नेगेटिव किसका ऑन दी अदर हैंड होता है? किसका पॉजिटिव उल्टा होता है? पॉजिटिव्स का ना। यस सर। तो जब तूने पहले पैराग्राफ में पॉजिटिव्स नहीं लिखे तो किस लिए यहाँ पे ऑन दी अदर हैंड आएगा? बिल्कुल नहीं नहीं सर, मुझे लगा मतलब आप दूसरा पूछ रहे हो नेक्स्ट वीपी में। नेक्स्ट बीपी में ही पूछ रहा हूँ। सर नेक्स्ट नेक्स्ट वीपी में तो फर्दर मोर ओवर आएगा सर। कुछ भी नहीं आएगा, वही मैं बताने जा रहा था। कुछ भी नहीं आएगा, कोई कनेक्टर नहीं आएगा। देयर विल ओके बी नो सर। कनेक्टर। जब तुम रीजंस के बाद नेगेटिव्स लिखोगे, कोई कनेक्टर सूट ही नहीं करता है। जबरदस्ती कनेक्टर्स नहीं डालते। सो ओके प्लीज सर। अंडरस्टैंड दैट। ऑन द अदर हैंड हाथा, अगर वो तो पहले सर जब यस सर पहले में पॉजिटिव लिखा हुआ नेक्स्ट में हम नेगेटिव लिखेंगे फिर आएगा सर ऑन द अदर हैंड। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ, a lot of people just put connectors without thinking of the meaning, कि कहीं भी on the other hand डाल देते हैं, however डाल देते हैं, additionally डाल देते हैं। ऐसे नहीं होता। उसको यस। suit करना चाहिए तब डलना है connector। Don't put a connector where it doesn't belong. Here in the first paragraph I mentioned reasons. It does not need a connector. The next paragraph mentioned negatives. It does not need a connector at the beginning. There will be no connector at the beginning of the second paragraph. Please make sure you do not put it there. Okay, we are just going to start with normally saying कि बहुत सारे negatives है। Again, as we are starting a new body paragraph, again I'll mention the topic again. There are many drawbacks of the growing trend, of the growing popularity of branded products. बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं ग्रोइंग पॉपुलैरिटी के ब्रांडेड प्रोडक्ट्स के। ग्रोइंग पॉपुलैरिटी का मतलब है ज़्यादा लोग खरीद रहे हैं, वो मैंने ग्रोइंग पॉपुलैरिटी के वे में यूज़ कर लिया। देर आर मेनी ड्रॉबैक्स ऑफ द ग्रोइंग पॉपुलैरिटी ऑफ ब्रांडेड प्रोडक्ट्स। तो ऐसे करके एंड देन यू आर गोइंग टू गिव मी द ड्रॉबैक्स। देन प्लीज यूज डिफरेंट कनेक्टर्स फॉर लिस्टिंग। Here I used the main reason, another reason besides this. Now I'm going to use firstly, secondly, finally. So you can give three drawbacks here. So these will be the three drawbacks. Abhi tak, I hope the essay is clear to you. The BP1 is in this way, and this is the BP2. ठीक है? So ऐसी छोटी छोटी चीजें होती है जो नंबर गवाती है, बिना बात के कनेक्टर्स, बिना बात का वो। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं कंक्लूजन पे। ठीक है, and I'll write conclusion also so that you know the plan of the essay properly and you're not confused. So conclusion है, don't write the word conclusion, start with in conclusion. In से start करना, मैं बस पहले conclusion लिख रहा हूँ। Okay, and introduction here.
Okay. So in conclusion, you are going to do nothing but to repeat your reasons, to repeat your, देखो मैम का ना, मैम ऐसे बोलते हैं, हम कंक्लूजन में वो करते हैं, हम वो बताते हैं जो हमने करा है। हमने क्या करा है इस ऐसे में, हमने इस ऐसे में ब्रांडेड प्रोडक्ट्स को खरीदने के रीजंस बताए, और हमने बताया कि जो ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग खरीद रहे हैं, कि मतलब बढ़ रहा है ये ब्रांडेड प्रोडक्ट्स की जो पॉपुलैरिटी, क्रेज़ बढ़ रहा है, द क्रेज़ ऑफ ब्रांड, ये सोसाइटी के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। हमने ये बताया, राइट, हमने ये बताया कि जो क्रेज़ है ब्रांडेड प्रोडक्ट्स का, मेरे हिसाब से नेगेटिव डेवलपमेंट है, और हमने पहली चीज़ें, हमने उसके रीजंस बताए। सो अब हम यही चीज़ लिखेंगे। आई वुड लाइक टू रीट्रेट, मैं दोबारा ये कहना चाहता हूँ कि ऑल्दो there are many reasons why the craze of buying branded products is growing day by day. I believe is definitely, और I believe नहीं लिखने की जरूरत, क्योंकि तुमने I would like to reiterate करा है, तो I already आ चुका है। It is definitely a negative development for the society. That would be our conclusion. हालांकि बहुत सारे reasons हैं कि क्यों ये craze grow हो रहा है। मुझे ये लगता है यहाँ ये it is definitely, ये definitely एक क्या चीज़ है, negative development है। Definitely this is a negative development. Definitely का मतलब होता है पक्का, ये क्योंकि ये one sided था तभी ये word आता है, अगर ये one sided नहीं होता तो definitely भी word नहीं आता। So this is the whole structure of my essay. Now, if anyone has any doubts in the structure, please let me know. Otherwise, we'll come to discuss how to write a single point, and then we'll move on to the next essay. So please let me know if you have any problem with the structure. Everyone clear? I have kept a homework for you at the end. फिर ये नहीं हो कि जब मैं homework दूँ and I don't receive it back. ठीक है, so I want it, so that's why I'm explaining it so thoroughly, so that मेरे को ये ना हो कि बाद में मैंने लिखा नहीं। ठीक है, ओके, चलें फिर नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट ऐसे। ओके, moving on to the next essay, sorry, how to write a single point. Now you tell me which point would you want me to write, बताओ कौन सा वाला लिखना चाहते हो, कौन सा वाला चाहते हो कि मैं लिखूं, शो ऑफ वाला, एडवर्टाइजिंग के, सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट्स वाला, क्वालिटी वाला के परसेप्ट हमारे को लगता है कि उनकी क्वालिटी बेटर है। डू यू वांट मी टू डिस्कस द डिसएडवांटेजेस? आई विल राइट वन पॉइंट एंड आई विल शो यू व्हिच वन डू यू थिंक यू विल फाइंड डिफिकल्टी इन। आई विल राइट दैट वन पॉइंट। एनीवन कैन सजेस्ट, कोई भी एक पॉइंट बता दो जो तुम्हें लग रहा है मैं लिखूं। सर फर्स्ट वाला शो शो ऑफ वाला लिख देते हैं, ठीक है। चलो, तू कैसे डिस्क्राइब करेगा, तूने पॉइंट लिखा था, चल पहले तू बता, हाउ वुड यू राइट इट? हाँ अंश, तू यस कैसे, सर। हाँ तू कैसे लिखेगा, तू बता। सर मैं लिखूंगा देख तू ना, शो ऑफ इसको ना स्टेटस बोल। द मेन यस सर स्टेटस द मेन रीजन व्हाई पीपल इज सोशल स्टेटस। तो पीपल ऑफन एसोसिएट, किस किस को एसोसिएट करते हैं? ब्रांडेड प्रोडक्ट्स विद विद किसके साथ? अगर कोई ब्रांडेड प्रोडक्ट्स पहन रहा है तो हमें क्या लगता है वो कैसा है, हमें क्या फीलिंग आती है, क्या फीलिंग आती है? देख, पीपल ऑफन एसोसिएटेड विद सक्सेस इन हायर सोशल स्टैंडिंग, कि वो सोशल स्टैंडिंग उसकी ज़्यादा होगी, वो ज़्यादा सक्सेसफुल होगा। हम मानते हैं ना कि हमें लगता है अगर उसने ब्रांडेड बोल रहे हैं तो ये सक्सेसफुल बंदा है। हमें लगता है किसी के पास आईफोन है तो वो सक्सेसफुल है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। देर आर यस पीपल, सर यू नो, आई डोंट नो इफ़ यू नो, यूएस में एक वॉरेन बफे है, ही हैज़ अ नोकिया का वो वाला फ़ोन,
जो पहले 1300। आता था, हाँ वो वाला फोन है उसके पास। पर हमें ये लगता है कि ब्रांडेड प्रोडक्ट्स होते हैं, दैट इज वी एसोसिएटेड विद सक्सेस एंड हायर सोशल स्टैंडिंग, एंड दस पीपल आर compelled, मतलब people are forced to wear branded products, even if they are financial, even if they even if even if they lead to financial strain, or even if they lead to financial stress, even if they are costly in the pay, even if they are expensive, even if they're considerably expensive। तो मेरा ये पॉइंट हो गया, पहला रीजन है कि हालांकि वो महंगे हैं, मतलब वो महंगे होते हैं, पर मेन रीजन होता है कि क्योंकि हमें लगता है सोशल से पीपल उनको एसोसिएट करते हैं, एंड दस पीपल फोर्स टू वेयर, मतलब पीपल को लगता है मेरे को पहनने ही पड़ेंगे, नहीं तो लोग समझेंगे कि मैं रिच नहीं हूँ, मैं सक्सेसफुल नहीं हूँ, तो people buy them and wear them. So that is my first point, and that is how I would end up writing it. And then you go ahead and you write the second reason, and then you write the third reason. Three lines दे दो। देखो अगर अब तुम देखोगे, this is how many words, 39 words, तो 40 का मेरा एक पॉइंट है। ऐसे ही अगला अगला वाला पॉइंट भी हो जाएगा 20-30 का, अगला वाला भी हो जाएगा 30-40 का, टोटल मेरा 100 and 110 का ये बन जाएगा पैराग्राफ। हाउ कैन वी राइट अ प्रॉपर एग्जाम्पल? सी एग्जाम्पल्स ऐसे नहीं होती है जैसे जैसे सेलिब्रिटी और एंडोर्समेंट्स का बोलो, तो तो तुम ये बोल सकते हो कि जैसे टीवी एड्स का बोल सकते हैं। एग्जाम्पल कैसे बोल रहा है ना, तो एग्जाम्पल बताना। टीवी एड्स तो पॉइंट ही है, पॉइंट ही है। पॉइंट और एग्जाम्पल में फ़र्क क्या है, मेरे को ये बता पहले तो। तो जो टीवी एड्स में सेलिब्रिटीज प्रमोट्स करते हैं, परफ्यूम्स हो गए। तेरा पॉइंट है ना यार, ये तो तेरा पॉइंट है ना, तेरा एग्जाम्पल क्या है? देख मेरे को बता पहले तो, तू क्या रीजन क्या बता रहा है इस पैराग्राफ में? हम इस पैराग्राफ में क्या बता रहे हैं, पहले तो ये सोचो। हम इस पैराग्राफ में रीजन बता रहे हैं व्हाई पीपल बाय ब्रांडेड प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब जब तुमने एग्जाम्पल लिखनी है ना, तुमने एग्जाम्पल ये शो करनी चाहिए कि उस चीज के कारण ब्रांडेड प्रोडक्ट लोग खरीद रहे हैं। एग्जाम्पल शुड शो दैट। एग्जाम्पल ये नहीं है कि सेलिब्रिटीज टीवी पे एंडोर्स करते हैं, ये एग्जाम्पल नहीं है। एग्जाम्पल है कि सेलिब्रिटी के एंडोर्स करने के कारण लोगों ने वो चीज खरीदी। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? जैसे कि मैं तुम्हारे को बताता हूँ, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। पोल्यूशन कम करना है, गिव मी अ वे, गिव मी अ सॉल्यूशन टू रिड्यूस पोल्यूशन। मे बी आई गिव यू अ गुड सोल्यूशन। आई से पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को प्रमोट करना चाहिए, या गवर्नमेंट को फास्टर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को बिल्ड करना चाहिए। डू यू एग्री विद दिस सोल्यूशन? अगर फास्टर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन होगी, पीपल विल यूज पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, एंड अपनी कार्स का यूजेज कम होगा, अपने आप पोल्यूशन क्या होगा, कम होगा। डू यू एग्री? डू यू एग्री विद दिस एग्जाम्पल? यस सर। ठीक है, सो व्हाट्स माय सोल्यूशन? मेरा सोल्यूशन है कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन अगर फास्टर आएगी, उससे क्या कम होने वाला है? पोल्यूशन। अब मेरी एग्जाम्पल देखना। फॉर एग्जाम्पल, द पोल्यूशन लेवल्स इन दिल्ली fell significantly, काफी ज्यादा गिरे after the introduction of metro train services. I know it's not exactly true, सही नहीं है, स्पेशली आजकल तो बिल्कुल नहीं बोल सकते, बट यू डोंट नो द टाइम बिफोर दिल्ली मेट्रो, उसमें और भी ज़्यादा पोल्यूशन था। तो मेरा ये एग्जाम्पल है। अब देखो, वो प्रॉपरली सोल्यूशन को जस्टिफाई करता है एग्जाम्पल। The example is about a particular place. It's an example. It's not a point because it's talking about Delhi. It's an example. It's about a place. The example is showing कि pollution कम हुआ। किसके बाद कम हुआ, किससे कम हुआ? Because of what? मेट्रो ट्रेसेस। Which is what? According to my point. मेरा पॉइंट क्या था? हाँ, मेरा पॉइंट क्या था?
फास्टर पब्लिक पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपोर्टेशन फास्टर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। तो मैंने तो दिखा दिया कि पोल्यूशन लेवल गिरा आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ मेट्रो ट्रेन सर्विसेज दिल्ली में। दिस इज एन एग्जाम्पल। दिस इज हाउ यू बिल्ड एन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल शुड शो जो तुम कह रहे हो। अगर तुम रीजन बता रहे हो तो वो एग्जाम्पल से प्रूव होना चाहिए। एग्जाम्पल नहीं कि सेलिब्रिटीज एड्स देते हैं। ये क्या एग्जाम्पल हुई? मेरे को तो एग्जाम्पल चाहिए कि ब्रांडेड क्लोथ्स की सेल बढ़ी है। तो तुम ये बताओ ना, ब्रांडेड क्लोथ्स की सेल बढ़ी है सेलिब्रिटीज के आने के साथ, तो तुम यहाँ पे बता दो कि सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट्स के साथ ब्रांडेड प्रोडक्ट्स की सेल में 20% 30% क्लोथ्स की सेल में इंक्रीज आ जाता है। तुम कुछ ऐसा बता दो। तुम कुछ बताओ कि ऐसा हुआ जैसे इस कंपनी ने जब से सेलिब्रिटीज को हायर करा इसकी सेल्स में बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट जंप आया। शो दैट कि ब्रांडेड प्रोडक्ट्स की सेल बढ़ती है सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट से। वो शो करना है, एग्जाम्पल ऐसे आनी चाहिए। ठीक है। एंड आई सेड अ नंबर 30%। आई डोंट लाइक दैट बिकॉज वो आर्टिफिशियल लगता है। जस्ट से सिग्निफिकेंट इंक्रीज। वाई डू यू वांट टू से 30%? जस्ट से कि बहुत बड़ा इंक्रीज आया उनकी सेल में आफ्टर आफ्टर दे हायर्ड लाइक आफ्टर पब्लिक सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट्स। सो लाइक दैट यू राइट एन एग्जाम्पल। सो और हर जगह नहीं बनती एग्जाम्पल। मैं तुम्हें ऑनेस्ट बात बताऊं, द फर्स्ट टाइम आई अटेम्प्टेड एन ऐसे आई डिड नॉट राइट अ सिंगल एग्जाम्पल। आई गॉट 8 bands. सो इफ यू थिंक एग्जाम्पल्स के बिना बैंड्स नहीं आते, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। एटलीस्ट 8 bands तक तो आते हैं। 8 के ऊपर मैं बता नहीं सकता क्योंकि मेरे खुद के नहीं है, तो मैं तुम्हें कैसे बता दूं। बट आई डोंट बिलीव दैट एग्जाम्पल्स आर नेसेसरी टू स्कोर गुड बैंड्स। ओके। सो मूविंग फॉरवर्ड, आगे कोई अच्छा आएगा ना जहाँ पे एग्जाम्पल बनता होगा, मैं खुद लिखूंगा एंड आई विल टीच यू। लेट इट कम बट ओके, आने दो तो करेंगे पक्का। मूविंग फर्दर, लेट्स गो टू द नेक्स्ट ऐसे। चलो अब मेरे को जल्दी जल्दी खत्म करने हैं। चलो आओ। ये ऐसे में रीजंस नहीं है। चलो नेक्स्ट ऐसे। डू थिंक देर आर नो रीजंस। चलो क्वेश्चन क्या है? फ्यूचर में हायर प्रपोर्शन होगी ओल्ड पीपल की दैन यंग पीपल। ठीक है। यू ऑल्सो एग्री विद दिस बिकॉज बर्थ रेट कम हो रहे हैं। पीपल डोंट हैव दो दो बच्चे नहीं करते आजकल, लोग एक एक कर रहे हैं। मतलब पॉपुलेशन इज डिक्रीजिंग जो यंगस्टर्स की है। और मतलब पीपल आर ऑल्सो लिविंग लॉन्गर। तो ओल्ड पीपल की प्रपोर्शन ज़्यादा होने वाली है। और कुछ कंट्रीज में तो ये ऑलरेडी हो रहा है, जैसे जापान इज कनाडा। वन, या कनाडा इज वन, जापान इज वन, जर्मनी इज वन। ठीक है। तो डू यू थिंक इट इज़ अ पॉजिटिव डेवलपमेंट या नेगेटिव डेवलपमेंट? चलो मेरे को तो पहले बताओ इसके पॉजिटिव्स क्या होंगे, नेगेटिव्स क्या होंगे, फिर हम अपना ऐसे पॉइंट्स लिखेंगे। चलो। ओल्डर पीपल की पॉपुलेशन मोर देन यंगर, दैट इज व्हाट इन द फ्यूचर। इसका क्या फायदा होगा, इसका क्या नुकसान होगा? बताओ। They can teach so many things to the young people, like what they have experienced in their life, good things and bad things. फिर तो वही कर रहा है, तो ओल्ड पीपल के हाँ, फायदे बता रहा है। मेरे को ओल्ड पीपल के फायदे नहीं चाहिए। मुझे किस चीज के किसके? फायदे चाहिए? हाई मेरे प्रपोर्शन मेरे को किस किधर चीज के जी? फायदे चाहिए बताओ। ਸਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਐਕਸਪੈਂਸਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ पेंशन देनी केयर पड़ेगी। वगैरह सारा कुछ प्रोवाइड करना पड़ेगा। ओके, वेरी गुड पॉइंट। गवर्नमेंट के ऊपर इकोनॉमिक बर्डन होगा। अच्छा मेरी एक बात सुनना, जो लवप्रीत का पॉइंट था, मेरे को बताओ। हाँ अगर जी। 10 ओल्ड लोग हैं या 20 हैं, तो 20 हम्म। से ज्यादा एडवाइस मिलेगी कि 10 लोग भी एडवाइस दे सकते हैं? सर दोबारा बोलिए। 10 ओल्ड लोग हैं, 20 ओल्ड लोग हैं, ठीक हाँ है? जी। 10 भी तो हाँ जी। एडवाइस दे सकते हैं। हाँ जी। क्वेश्चन ये थोड़ी था ओल्ड लोगों के क्या फायदे हैं। क्वेश्चन क्या था? और ठीक है। क्वेश्चन क्या था? बड़े क्वेश्चन से बताइए। क्वेश्चन ये था कि ओल्ड लोगों की प्रोपोर्शन ज्यादा होगी किससे? यंग पीपल। तो उसका फायदा बताना। अच्छा। तूने किसका फायदा बताया? तूने बताया ओल्ड लोग एडवाइस देते हैं। मेरे को पता है ओल्ड लोग एडवाइस देते हैं, पर एक ओल्ड पर्सन भी एडवाइस दे सकता है। मेरे को ओल्ड पीपल की प्रोपोर्शन ज्यादा नहीं चाहिए और किस। ठीक है, ठीक। ओके ओके। ओके, वो ऑफ हाँ जी। जा रहे हैं हम। जी। ठीक है। वो ठीक। तो जो ठीक। पॉइंट व्हाट शी सेड इज द बेस्ट पॉइंट। गवर्नमेंट के ऊपर हाँ। एक बर्डन पड़ता है दो वेज में। कैन समवन एक्सप्लेन टू मी हाउ डज द बर्डन ऑन द गवर्नमेंट इंक्रीज? Because they have to pay pension to them. और They need to और
दे उनका आल्सो ध्यान रखना पड़ता है। हेल्थ केयर सर्विस तो पेंशन तो हाँ नहीं बढ़ती है, पर उनका रेवेन्यू ट्रेन कम हो जाता है। यंग भी तो कम है ना। अच्छा, टैक्सेस कौन देता है, कौन काम करता है, मेरे को बताओ। यंग लोग। ठीक है। अब यंग कम हो रहे हैं, ओल्ड बढ़ रहे हैं, तो देखो दोनों तरफ से लात पड़ रही है गवर्नमेंट को। पहले तो गवर्नमेंट टैक्स जो कमा रही थी वो कम हो जाएगा, क्योंकि यंग लोग कम है। और गवर्नमेंट का पेंशन बर्डन भी बढ़ जाएगा। तो इट विल बी अ डबल वैमी, मतलब दोनों तरफ से गवर्नमेंट को लात पड़ रही है, खर्चा बढ़ रहा है, इनकम कम हो रही है। तो राइट इट लाइक दैट। ठीक है। सो इसका मतलब पता है क्या होगा, तुम्हारा एक्चुअल बर्डन किस पे बढ़ेगा, मेरे को बताओ। पीपल्स कैसे? कैसे सर बढ़ेगा तुम्हारे पे बर्डन ज्यादा, यंग लोगों पे, बता। वी हैव टू पे मोर टैक्स। या सर गवर्नमेंट ले रही है। हाँ। नहीं 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 नहीं, जो उसने बोला अब अच्छे से सुनो। हमें ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट को पेंशन देनी है, और हम टैक्स देने वाले लोग कम हो गए, तो गवर्नमेंट कहेगी चलो टैक्स बढ़ाते हैं, हमें तो टैक्स चाहिए। सो अल्टीमेटली पीपल विल हैव टू पे मोर टैक्सेस। सो इट विल बी बर्डन ऑन द यंगस्टर्स। ये पॉइंट आएगा। ठीक है, इस पॉइंट को अच्छे से एक्सप्लेन कर देना। मैंने समझाया कि गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन बनेगा, अल्टीमेटली इट विल लीड टू हायर टैक्सेस, a higher tax burden on the young people, because there will be less young people to pay taxes, तो गवर्नमेंट ज्यादा टैक्स लगाएगी। चलो आगे बताओ। एनी अदर ड्रॉबैक? जो तुम जा रहे थे जिस डायरेक्शन में, वो वाली डायरेक्शन में जाते, और गवर्नमेंट को क्या प्रोवाइड करना पड़ता ओल्ड पीपल को, जो तुम बता रहे थे गवर्नमेंट का वो स्पेंडिंग इंक्रीज होने वाली है, कौन सी वाली स्पेंडिंग? स्पेंडिंग ऑन हेल्थ केयर से पेंशन एंड हेल्थ केयर सर्विस। spending on healthcare. So government will have to spend more on healthcare services, hospitals वगैरह का expense गवर्नमेंट का बढ़ने वाला है। Done. That is going to happen. Any other drawback? ਸਰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਜੌਬ ਦਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੌਬ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਣਾ। क्यों? ਸਰ ਜੇ ਯੰਗ ਪੀਪਲ, ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ 올ਡ ਪੀਪਲ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹ 65 ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਛੱਡੂਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੌਬ ਕਿੱਦਾਂ मिलूगी। अच्छा, अगर ओल्ड ज्यादा है, यंग कम है, ये भी ਹਾਂਜੀ ना, यंग क्या हो गए? सर लेबर शॉर्टेज हो सकती है। Sir, हाँ, if उल्टा there will be more, शॉर्टेज होगी, क्योंकि हाँ काम करने वाले लोग कम हो रहे हैं, यंग लोग कम हो रहे हैं ना। तो क्वेश्चन तो दोनों समझ, यंग लोगों की कम है, ओल्ड पीपल की ज्यादा। ज्यादा। तो ओल्ड पीपल ਹਾਂਜੀ पैसे तो कम ही काम करेंगे ना यंग से। ठीक है। ਹਾਂਜੀ तो जल्दी रिटायरमेंट ले लेंगे ना, अगर यंग की ज्यादा होती तो कंपटीशन ज्यादा था। तो इट माइट लीड टू शॉर्टेज ऑल्सो, लेबर शॉर्टेज ऑल्सो। और ये हो रही है। तो तुम्हें क्या लग रहा है, तुम्हें क्यों बुला रहा है, कनाडा क्यों बुला रहा था 2 साल पहले तक? और तक पढ़ रहे हैं। हाँ, तो अभी छोड़ो, 2 साल पहले तक क्यों बुला रहा था? शॉर्टेज। शॉर्टेज थी ना। लेबर नहीं सी सो। लेबर नहीं थी उनके पास, दे डिडंट हैव इनफ पीपल टू वर्क। सो दैट इज इट। ओके। चलो आगे चलते हैं। जापान क्यों बुला रहा है पता है? जापान में तो बहुत ज्यादा जापानीज गवर्नमेंट इज सो कीन के इंडियंस आके वहां पे काम करें। सो चलो, अब चलो एडवांटेजेस भी बता दो इसके, अगर कोई है तो। एक्सपीरियंस। नहीं, अंश एक ओल्ड पर्सन नहीं है, ओल्ड पीपल की पॉपुलेशन ज्यादा है। उसका 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 फायदा बताना है, ओके ओल्ड ओके। पीपल के फायदे नहीं बताने हैं। Can anyone think of any other drawback of this? ਸਰ ਜਿੱਦਾਂ ਲਾਈਕ ਜਿਹੜੇ 올ਡ ਪੀਪਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਆਲਮੋਸਟ ਘਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਯੰਗ ਪੀਪਲ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਘਰ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਕਾਈंड ऑफ। अच्छा, it'll be good for the family. Okay. ठीक है। So young people will have family support. ठीक है। Okay. Done. We can write it that. Can I also write like in the negative sense सोचो तो young people के ऊपर burden बढ़ने वाला है, क्योंकि उनको उनका भी ध्यान रखना पड़ेगा। Can I say that? से अगेन सर। yes, sir, because there will be more old generation and younger have to take care of them. हाँ, तो हाँ जैसे तुम घर आओगे, अब मैं So तुम्हें it will बताऊँ। be burden on their pockets. यस। अब मैं तुम्हारे को एग्जांपल देता हूँ। माई कजन इज 37। ठीक है। माई मामा जी इज 65। डू यू कंसिडर माई मामा जी टू बी ओल्ड? ही 65, राइट? I think he's old. Not that old, but old. And till last year my Nana ji was 95. अब तुम ये सोचो, मेरा कजिन एक है,
उसको कितनी ओल्ड जनरेशन का ध्यान रखना पड़ रहा है? दो दो जनरेशन्स का। एक्चुअल में 4 जने हो गए। मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द मतलब नानी जी साइड एंड मामी जी साइड, वो तो मैं कर ही नहीं रहा हूँ बात, क्योंकि चलो फिर तुम बोलोगे लाइक माई कजन वाइफ इज ऑल्सो देयर, वो छोड़ते हैं चलो, बट माई कजन हैज टू टेक केयर ऑफ 2 ओल्ड पीपल। अब तुम ये सोचो ना, बर्डन बढ़ने वाला है यंग पीपल पे, उनको ज्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा उनकी केयर में, बिकॉज देर आर मोर यंग ओल्ड पीपल देन यंग पीपल, सो द बर्डन ऑन यंग पीपल इज ऑल्सो गोइंग टू इंक्रीज। अब मैं इसलिए पता है क्यों नहीं सोच रहा, बिकॉज उसका पॉइंट बहुत अच्छा था जो उसने बोला, whoever talked about the last point के फैमिली अपब्रिंगिंग में जो चिल्ड्रन की रेजिंग में हेल्प हो जाएगी, चिल्ड्रन की रेजिंग में हेल्प हो जाएगी। आई एग्री विद दिस पॉइंट, बट आई एम थिंकिंग क्योंकि एक ही पॉजिटिव पॉइंट है बाकी सारे नेगेटिव्स हैं, व्हाई नॉट गो कम्प्लीटली क्या नेगेटिव। कम्प्लीटली नेगेटिव। तो मैं ये सोच रहा हूँ कम्प्लीटली नेगेटिव जाते हैं, बाकी छोड़ते हैं, इसलिए मैं वो एडवांटेज को इग्नोर मार रहा था। Anyways, I hope it is clear. And we are going to write the essay based on this. That's it. We are not writing any positive points. So we are going to go completely negative. चलो अब हम करते हैं इस essay को again. So it is true that वैसे ही start करना. It is true that in some countries, और in some countries की जगह ना मेरा एक बहुत अच्छा synonym है, in some parts of the world there will be a higher proportion of elderly than youth. Okay. There will be a higher proportion of elderly than the youth. Okay. So I've written the topic and then I'm going to write my opinion. I believe this would be harmful for the society. I believe this trend, this development would certainly be harmful, or detrimental is another word that I know for harmful for the society. ये चीज सोसाइटी के लिए हार्मफुल होगी, क्योंकि मैं यहाँ पे नेगेटिव डेवलपमेंट लिखने वाला हूँ. सो दैट वुड बी माई इंट्रोडक्शन. इफ एनीवन हैज अ प्रॉब्लम विद द इंट्रोडक्शन प्लीज लेट मी नो. दिस इज हाउ आई एम राइटिंग इट. पहले भी ऐसे ही करा था, कुछ नहीं करना. डिफरेंस है रीजंस वाली बात यहाँ पे नहीं आ रही है, बिकॉज रीजंस मैंने लिखने ही नहीं है. सो it ends there. Okay, now we are going to only write one. We are only going to write one type. We don't have different, मतलब सिर्फ एक ही है, ड्रॉबैक्स ही लिखने हैं, कुछ और नहीं लिखना. पूरे ऐसे में सिर्फ ड्रॉबैक्स ही लिखने हैं. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू हैव अ 3 बीपी अप्रोच. ईच बीपी इज गोइंग टू हैव 1 पॉइंट एंड 1 बीपी जहाँ पे मेरे से अच्छे से जो पॉइंट अच्छे से समझा नहीं पा रहा हूँ उसमें 2 पॉइंट्स डाल दूंगा, क्योंकि हमारे टोटल जो हमने पॉइंट्स ब्रेनस्टॉर्म करे थे वो 4 थे. I think I erased them by mistake. I'm not sure. I think I erased them. We had 4 points. I'm just going to divide it um into the 3 BPs. और तुम 2 PP approach भी ले सकते हो. First PP 2 points, second PP 2 points. You can also do that. So there are many. There would be many. ये ना वुड भी इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये चीज जो होने वाली है फ्यूचर में होने वाली है. तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आई एम ऑल्सो चेंजिंग माई लैंग्वेज, माई ग्रामर. आई एम नॉट राइटिंग इस चीज के नेगेटिव्स हैं, मैं बोल रहा हूँ इस चीज के नेगेटिव्स होंगे, बिकॉज ये फ्यूचर में होना है. दैट इज व्हाट्स रिटन हियर, इट इज एक्सपेक्टेड. तो आई एम ऑल्सो गोइंग टू बी डूइंग दैट. सो यहाँ पे भी देखो वुड लिखा है मैंने, ये डेट्रीमेंटल होगा. डेट्रीमेंटल है नहीं लिखा, होगा, क्योंकि अभी नहीं है. there would be there would be many negative, there would be a number of negatives. Detrimentally of the society. Detrimentally for the society. यहाँ पे क्या लिख रहे हैं? there would be a number of negatives of किस चीज के? of a higher proportion of elderly. Yes, of a higher proportion of elderly. There would be a number of negatives of there would be a number of drawbacks. क्या बोलेंगे? It doesn't come, it's not coming off right.
there would be a number of negatives of the increasing proportion of elderly. There would be a number of negatives of an increasing. ठीक है, there would be a number of negatives of an increasing proportion of elderly, and then you're going to give the points. Firstly, अगर हमने दो BP's approach लिखनी है, तो firstly, secondly, in the first one, then you can say apart from this, in the second BP, and then you can write finally. So you can have your 4 points, and that would be your whole essay. And then you write the conclusion. Again, you repeat. If I would like to reiterate. And that, just repeat the topic that a higher proportion of elderly or higher proportion of old people Vaishu, compared to young Vaishu. certainly be harmful for the society. Vaishu, Yeah. That would be okay. So that would be my conclusion. Okay. So if anyone has any doubts, please let me know. यहाँ पे देखो कोई reasons की बात नहीं हुई. अपने आप modify कर लेना जब तुम conclusion लिखोगे. अगर reasons नहीं पूछे तो okay. So तुमने बस ये चीज़ कहनी कि ये चीज़ society के लिए अच्छी नहीं होगी, या certainly would be a negative development भी लिख सकते हो. I would like to reiterate that a high proportion of old people as compared to youngsters would certainly be a negative development. Would certainly be a negative development. Okay, so that way you can write. So easy essay है, one-sided तो बहुत ही easy है, and you write it like this. It comes off really well, बहुत easily आ जाता है. और remember the two things. कई बार reasons पूछे होते, कई बार नहीं पूछे होते, तो just make it accordingly. Okay. Can we go ahead to the third essay? Sir, Yes. sir, do we have any other word for higher proportion? High ratio. Larger you can use. Okay, okay, sir. That a larger proportion of old people as compared to youngsters would certainly be a negative development. That would also. Okay. मैं एक बात बताता हूँ, पता है मेरी अप्रोच क्या होती है. मैं अपना बताता हूँ. What my experience has taught me. I have stopped focusing on single words. मैं ये नहीं बोल रहा. Suddenly. एक सेकेंड. I'm not saying it's wrong of you to ask me vocabulary. You should ask, क्योंकि अभी तो तुम्हारा learning phase है और मेरी vocabulary तुम बहुत कुछ सीख सकते हो. बट मैं तुम्हें ये बताता हूँ, इन द एग्जाम डू नॉट गेट स्टक ऑन वन वर्ड कि मुझे इसका सिनोनिम लिखना है. कई बार सिनोनिम सोचते सोचते हम बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं. डोंट डू दैट इन द एग्जाम. ठीक है, राइट नाउ इज द राइट टाइम टू आस्क. सो अभी पूछो. अभी क्लास में यू कैन आस्क मी, सो व्हाट इज अनदर वे आई कैन राइट दिस, बिकॉज आई एम देयर टू टीच यू दिस ओनली. मैं तो बताऊंगा, बट एग्जाम में इस पे टाइम वेस्ट नहीं करना. एग्जाम में you should be spending your time on your points. Your points should be strong. They should be relevant. अगर अच्छे बैंड्स लेने हैं, पॉइंट्स खराब है, बैंड्स नहीं आएंगे. चाहे तुम्हारी इंग्लिश की वोकैबुलरी अच्छी भी है. तुम सोच लो, तुम खुद सोचो ना. अगर वीक पॉइंट्स है, हाउ कैन आई गिव यू बैंड्स? आई वुड से दिस इज इरेलीवेंट. मैं बोलूंगा ये तो पॉइंट ही नहीं सूट कर रहा. मैं कैसे बैंड्स दे दूं, चाहे तुम्हारी इंग्लिश जितनी मर्जी अच्छी लिखी हो. Okay, so remember that in the exam, you are to focus on the points. Right now, you Okay, have to focus on both the things. Okay, and this is not for her, for you alone. This is for everyone. अभी तो तुम पूछो मेरे से vocabulary. Ask me what are different ways this can be said. Okay, so moving forward, next essay. In the society, male sports are given more attention than female sports. Why is it so? चलो, tough essay. बताओ, मेल स्पोर्ट्स को ज्यादा attention क्यों दी जाती है? Totally ignored.
आई वांट पॉइंट्स फ्रॉम सर फीमेल कंसिडर की जाते हैं वो घर का काम करे क्योंकि ओल्ड थिंकिंग। नहीं, पर फीमेल का क्रिकेट मैच चल रहा है, मेल्स का ज़्यादा चल रहा है, ठीक है। तो मेल के क्रिकेट मैच को ज़्यादा लोग देखेंगे, फीमेल को कम देखेंगे, ऐसा क्यों है? ये क्वेश्चन है। टीआरपी। टीआरपी क्यों कम है ना यार, वही बता रहा हूँ ना, क्यों कम लोग देख रहे हैं, वही तो क्वेश्चन है। क्यों कम है ये बताना। तेरे पास दो चैनल है, एक पे मेल को देख रहे हैं, एक का मेल मैच चल रहा है, एक का फीमेल्स का चल रहा है, तो मेल वाले मैच के नंबर ऑफ व्यूअर्स ज्यादा होंगे, क्यों ज्यादा होंगे? वही टीआरपी होती है। बताओ। मुझे पता था ना, देखो तभी मैंने थर्ड ऐसे रखा। मुझे पता था सबने ब्लैंक हो जाना है अगर मैंने पहले ऐसे रख दिया। बट आई वॉन्ट यू टू थिंक, यू कैन थिंक, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट ऑल्सो। बताओ। वाई डू मोर पीपल वॉच मेल स्पोर्ट्स? फीमेल स्पोर्ट्स कम क्यों देखते हैं? Sir, they are good players and they have created a huge fan base. They're good players, so female sports persons are not good players. So सर comparatively, males are good because they have achieved so much up till now. क्योंकि अच्छा, सर They तेरा have प्रमोट तेरा proved by पॉइंट। winning the competition. अच्छा, तो ये कहना चाहती है कि हिस्टोरिकली चलता आ रहा है कि मेल्स मतलब मतलब ठीक है, तो अभी यू आर जस्ट कंसिडरिंग क्रिकेट, ठीक है। बट देर आर Yeah. स्पोर्ट्स लाइक बैडमिंटन में तो जैसे फीमेल स्पोर्ट्स पर्सन हैं वो आगे है, ठीक है, जैसे Okay. बैडमिंटन से सर तो। उनको जो मेल स्पोर्ट्स होते हैं जैसे क्रिकेट, सर उनको ज़्यादा प्रमोट किया जाता है। क्यों करा जाता है प्रमोट ना, वही तो बता दे मेरे को। क्यों ज्यादा लोग देखते हैं ना, क्यों करते हैं उनको ज्यादा प्रमोट, बता तो सही। अच्छा मुझे बताओ, तुम्हें क्या लगता है वो विच डू यू हैव दिस फीलिंग कि मेल स्पोर्ट्स आर मोर एक्साइटिंग? नो सर, इक्वली हैं दोनों। दोनों इक्वली हैं, पर कई लोगों को ये फीलिंग है कि मेल स्पोर्ट्स आर मोर एक्साइटिंग। व्हाई डू यू थिंक ਸਰ सम? ਸਰ ਲਾਈਕ ਸਰ ਜਿੱਦਾਂ ਆਈਪੀਐਲ ਹੋ ਗਿਆ ਫੀਫਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਂਡਸ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆ ਇਹ देखो, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੈਂਡ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ हना ਜਿੱਦਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੈਂਡ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ मेल्स ਤੇ ਕਰਦੇ आ क्यों सर मुझे करते पता हैं लग ज्यादा? गया। सर ये ਹਾਂਜੀ ਉਹ ही नहीं पता बस क्यों करते आ सर मुझे पता क्योंकि सर जो मेल स्पोर्ट्स है क्रिकेट है, हम्म। सर उस पर जो पीपल से इन्वेस्ट ज़्यादा करते हैं। क्यों ज्यादा करते हैं ना, बता तो दे ना। ਉਹਦੀ ਪॉपुलैरिटी ज्यादा आ क्यों ज्यादा पॉपुलैरिटी है, वही तो क्वेश्चन है। सर तो तू ही दस क्योंकि तुम्हें लगता है कि मेल स्पोर्ट्स ज्यादा एक्साइटिंग है बिकॉज मेल्स आर बेटर इन एथलेटिकली, मेल्स आर बेटर देन फीमेल्स। मोस्ट पीपल थिंक दैट कि मेल्स बेटर हैं एथलेटिकली, सो देयर गेम्स आर मोर एक्साइटिंग। तो ज्यादा एक्साइटिंग है वहां पे, ज्यादा जैसे वो ज्यादा फास्टर होगी, जैसे क्रिकेट में डिलीवरी स्पीड जो होगी, फीमेल्स की हाईएस्ट क्रिकेट डिलीवरी स्पीड है बॉलर्स की 130, मेल्स में इट कैन गो अप टू 155 160। सो वहां पे एथलेटिसिज्म ज्यादा लगता है लोगों को, सो पीपल फील दे आर मोर एक्साइटिंग एज स्पोर्ट्स। जो जैसे अब मेल्स रनिंग देखो, स्पीड तो मेल्स की ज्यादा है। अगर तुम रनिंग रनिंग का कंपटीशन देखोगे तो जो 100 मीटर रेसेस हैं, मेल्स की स्पीड फीमेल से ज़्यादा है। तो ये लगता है मेल्स आर एथलेटिकली बेटर। दैट इज वाई, जो कॉमन, ये तो कॉमन सेंस है। डोंट यू थिंक, अ लॉट ऑफ अस थिंक लाइक दैट, विच मे नॉट बी राइट। आई एम नॉट सेइंग इट्स राइट, आई एम जस्ट सेइंग इट्स अ परसेप्शन, ये लोगों का नजरिया है। अगेन जो ब्रांडेड वाले ऐसे में मैंने वर्ड बोला था, लोगों को ऐसा लगता है, दे फील दैट मेल स्पोर्ट्स आर मोर एक्साइटिंग। मैं तुम्हें सच्ची बताऊं, अभी थोड़े दिन पहले इंडिया का विमेन का वर्ल्ड कप का फाइनल था, और उसी दिन मेन का भी स्पोर्ट्स का मैच था। आई आई वॉज वॉचिंग द फीमेल स्पोर्ट्स मैच रादर देन द मेल स्पोर्ट्स मैच। और बात पता क्या हुआ, फीमेल का रेन के कारण थोड़ा डिले हो गया, तो ऐसा मौका ही नहीं आया कि मुझे एक देखना पड़ा दूसरा नहीं। बट अगर दोनों साथ में होते ना उस दिन, मैं पक्का फीमेल मतलब गर्ल्स का मैच देखता। तो
that was the kind of day it was. So थोड़ा थोड़ा चेंज भी हो रहा है, मैं ये नहीं बोलता हूँ, पर ये रीजन है। पहला रीजन जो है वो एथलेटिसिज्म वाला रीजन है कि मेल्स आर कंसिडर्ड टू बी मोर एथलेटिकली, मतलब मोर, मतलब उनकी एबिलिटी ज्यादा मानी जाती है। abilities, yes. डू यू ऑल एग्री विद दैट रीजन? यस ठीक है, सो दैट इज द फर्स्ट रीजन। बाकी रीजंस तुम्हारे से थोड़ा थोड़ा मैच करते हैं, आई कवर दोज रीजंस, बट आई डोंट, मतलब अच्छे से तुमने वो अच्छे से पॉइंट नहीं बताया। एक पॉइंट किसी ने बताया था, आई थिंक कवर्ड इट, पर वो मैं करता हूँ। देखो, एक रीजन है लॉन्ग स्टैंडिंग ट्रेडिशन। हिस्टोरिकली मेन ने डोमिनेट करा कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स को पास्ट में, क्योंकि विमेन को क्या नहीं मिली? Receptions. विमेन को अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, विमेन के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस थी, विमेन वर नॉट अलाउड। तो अब वो जो मैन का जो हिस्टोरिकली वो आ रहा है ना, उसके कारण अभी भी उसको ज्यादा अटेंशन मिल रही है। यू गेट द पॉइंट? जैसे मैन स्टार्टेड प्लेइंग क्रिकेट 100 years अगो, विमेन स्टार्टेड प्लेइंग क्रिकेट 50 years अगो। तो जो 100 चीज वाली जो पहले चली, उसको ज्यादा ही क्या मिलने वाली है? अटेंशन। डोंट यू एग्री? जैसे शी सेड कि मेल्स ने ज्यादा अचीव कर लिया है, शी इज राइट, बिकॉज दे हैव गॉटन एन अपॉर्चुनिटी सिंस मेनी इयर्स अगो। विमेन को अभी रिसेंट ईयर्स में अपॉर्चुनिटीज मिली है, इसलिए ज्यादा अभी उनकी जो वो है ना, वो इतनी इस्टेब्लिश नहीं हुई। जैसे आईपीएल तूने बोला, तेरे को पता है लवप्रीत, विमेन की भी हाँ जी। लीग होगी है, पता है तेरे को? नहीं सर। नहीं पता ना, देख, तेरे को पता ही नहीं, उसका नाम भी पता है? उसका नाम क्या है? WPL, वुमेन्स प्रीमियर लीग। हो गए, पता है उसको कितने साल हो गए? कितने सर? 3-4 साल हो गए। पता है तेरे को? पता देख, देखो, ये नहीं। यही तो क्वेश्चन है कि तूने उसको अटेंशन ही नहीं दी। और इसका रीजन ये है कि अभी अभी इस हिस्ट लॉन्ग स्टैंडिंग ट्रेडिशन है, मतलब ट्रेडिशनली मेल ने कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स को डोमिनेट करा है फॉर अ लॉन्ग टाइम, लाइक मच व्हाइल women had limited opportunities। तो पास्ट में द रीजन इज दैट इन द पास्ट मेल्स वर अलाउड, women की पार्टिसिपेशन अभी अभी आई है। women have recently started participating in sports। सो ये हो चुका है, जो मेन की लीग्स हैं, दे हैव बिकम मोर एस्टैब्लिश्ड। जो मेन के वो है, दे हैव गेन्ड ऑलरेडी, गेन्ड सपोर्टर्स, उनके सपोर्टर्स चुके हैं। तो ये रीजंस हैं, उनकी ऑलरेडी लार्जर ऑडियंसेस बन चुकी हैं। द पॉइंट इज ट्रेडिशन, बिकॉज men have been playing sports for a longer time, their sports have become, or their leagues have become much more established, they have become much more popular, they've already built a fan following, उनकी फैन फॉलोइंग बन चुकी है ऑलरेडी। विमेन की पार्टिसिपेशन अभी रिसेंटली स्पोर्ट्स में हुई है, पहले विमेन थी नहीं ना। क्रिकेट का मैच था ही नहीं विमेन का। विमेन के वर्ल्ड कप शुरू हुआ 1998 में, आई थिंक, विमेन का वर्ल्ड कप क्रिकेट का। मेन का शुरू हुआ 1950 में। तो फिर फर्क तो रहेगा ना दोनों की फैन फॉलोइंग में। दिस इज माई पॉइंट। तो ये ट्रेडिशन की बात है कि मैन बहुत लंबे समय से खेल रहे हैं, विमेन ने अभी खेलना शुरू करा है, इसलिए उसको ज़्यादा अटेंशन नहीं मिल रही है। सो पहला रीजन मेरा ये है। सेकंड रीजन मैं ये बता चुका हूँ कि ये, इसको ना तुमने ये वर्ड यूज करना है, स्टीरियोटिपिकल बिलीफ। डू यू नो व्हाट इज द स्टीरियोटाइप? स्टीरियोटिपिकल बिलीफ क्या होता है? व्हाट इज इट? व्हाट डू यू थिंक? व्हाट डू आई मीन बाय स्टीरियोटिपिकल बिलीफ? कैन एनीवन टेल मी? तो कैन इट बी अंधविश्वास कि लोग मेल्स ज्यादा अच्छा खेलते हैं? नहीं, अंधविश्वास नहीं, बट यू आर वेरी क्लोज। मतलब वो ये होता है कि ना, हम देख, मैं हाउ डू आई टेल यू, डू यू ਸਰ थिंक? ਸਟੀਰੀਓਟਾਈਪ ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੱਜ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਆ ਤਾਂ ਗੁਜਰਾਤੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਆ ਵੀ ਸਟੀਰੀਓਟਾਈਪ ਜਿਹਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ यही मतलब है, सबको ਹੈ जज ਨਾ। कर देना, सबको जज कर देना, ਹਾਂ हर एक को अपने अलग से मत देखना। यू गेट द पॉइंट? ਹਾਂ जैसे कि ਹਾਂਜੀ अब एक लड़का है, एक ब्रदर, एक सिस्टर है। अब तुम्हारे को मैं पूछूं कौन पावरफुल है, तो तुम शायद बोल दोगे ब्रदर। अब ये तुम्हारा स्टीरियोटिपिकल बिलीफ है। क्यों स्टीरियोटिपिकल बिलीफ है? क्योंकि तुम कहोगे ब्रदर क्या है? Male. हाँ, मेल। ਮੇਲ तो ये बिलीफ है तुम्हारा, क्योंकि मेल तकड़े होते हैं, ब्रदर तकड़ा होगा। पर जरूरी थोड़ी है कि ब्रदर तकड़ा हो किससे। द ब्रदर इज स्ट्रॉन्गर देन द सिस्टर। मे बी द सिस्टर इज मोर एथलेटिक, शी इज बेटर। आई थिंक एक्चुअली मेरी फैमिली में देख लो, मेरे को तो लगता है मेरी सिस्टर ज़्यादा एथलेटिक है। शी इज़ मोर स्ट्रॉन्गर देन मी, शी इज़ स्ट्रॉन्गर देन मी। सो ये स्टीरियोटिपिकल बिलीफ है लोगों का कि मेल्स आर बेटर, और मेल्स आर एथलेटिकली बेटर देन फीमेल्स, इसीलिए उनकी उनकी स्पोर्ट्स को मोर क्या माना जाता है?
एक्साइटिंग, एंड इसलिए उनकी स्पोर्ट्स को ज्यादा क्या मिलती है, अटेंशन। इज इट क्लियर? डू यू गेट द पॉइंट? यस ठीक है, यस ओके। थर्ड पॉइंट जो तुम्हारा पॉइंट है वही पॉइंट है जो तुमने बताया था, पर तुम ना अच्छे से समझा नहीं पाओगे, इसलिए मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो, मेल स्पोर्ट्स के अंदर ज्यादा इन्वेस्टमेंट होती है, आई एग्री। अब क्योंकि ज्यादा इन्वेस्टमेंट होती है, उनको ज्यादा ब्रांड वो मिलती है, ज्यादा मीडिया उनको कवरेज मिलती है। उनको ज्यादा मीडिया कवरेज मिलती है तो उनको ज्यादा क्या मिलती है, अटेंशन। और उनको ज्यादा अटेंशन मिलती है, इसीलिए उनको ज्यादा क्या मिलती है, इन्वेस्टमेंट। तो ये एक चेन बन चुकी है। Because they are getting more investment, they are getting more attention. Because they are getting more attention, they are getting more investment. ये आपस में एक चेन है। इसलिए भी मेल स्पोर्ट्स को है ज़्यादा क्या मिल रही है, फॉलो, देयर इज मोर फॉलोअरशिप और मोर अटेंशन गिवन टू मेल स्पोर्ट्स बिकॉज ऑफ मोर इन्वेस्टमेंट। अब मोर इन्वेस्टमेंट क्यों है वो भी तुम्हें मैंने बता दिया, वो मोर अटेंशन के कारण है, क्योंकि उस पर ज़्यादा ध्यान जा रहा है, इसलिए उसको ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं। ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, ज़्यादा मीडिया कवरेज हो रही है, इसलिए ज़्यादा अटेंशन मिल रही है। तो ये बात हो रही है। So this is what I'm going to write here. So I've thought about 3 points here. First point is what I said is the stereotypical belief that males are athletically better than females. This is the first point of view. Second point of view is what we said, कि long-standing tradition कि मतलब males started playing, मतलब males started playing competitive sports much earlier than females, than girls. मतलब boys started or men started much earlier than women. So this is my second point. तो उनकी जो leagues हो चुकी हैं वो establish हो चुकी हैं, उनकी brand for उनका जो है fan following बन चुकी है, it's already established, they have already a fan following, and इसलिए they garner more attention. तो फीमेल्स की तो एंट्री बहुत लेट हुई है इन रिसेंट ईयर्स ओनली। सो बहुत ऐसे मेल, अब तुम यहाँ पे एग्जांपल दे सकते हो, फॉर एग्जांपल द मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप स्टार्टेड 100 years back, while the female cricket World Cup started just 22 decades back. Therefore, male sports. अब ये एग्जाम्पल है, यू आर आस्किंग मी फॉर एन एग्जाम्पल, राइट? अब मैं तुम्हारे को एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अब इसमें ईयर्स भी नहीं मैटर करते। तुम बोल रहे हो अराउंड 100 years बैक, और उसके बोल रहे हो अराउंड 20-30 years बैक, तो तुम बता रहे हो इसलिए उसको ज़्यादा अटेंशन मिल रही है। तुम आईपीएल का बता दो, आईपीएल का तो इस बार आई थिंक, आई डोंट नो, आई थिंक 17th एडिशन थी। तो मेल आईपीएल, जैसे विमेन आईपीएल को जैसे 4 years हुए हैं, और जो मेल का प्रीमियर लीग है इंडिया में उसको स्टार्ट हुए बट 17-18 years हो गए हैं। तो इसलिए फ़र्क हो, इसलिए उसको ज़्यादा अटेंशन मिल रही है। यू हैव सच अ गुड एग्जाम्पल हेयर ऑल्सो। एंड थर्ड पॉइंट इज इन्वेस्टमेंट। ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के ज़्यादा कारण उनको ज़्यादा मीडिया कवरेज मिलती है, एंड ज़्यादा मीडिया कवरेज के कारण उनको ज़्यादा अटेंशन मिलती है। और क्योंकि एक ज़्यादा अटेंशन मिल रही है, इसलिए उनको ज़्यादा क्या मिलती है, इन्वेस्टमेंट। सो देयर इज़ एक साइकिल सा बन गया है। ठीक है, सो बिकॉज ऑफ दैट, एंड दैट इज अनदर रीजन वाई दे आर गेटिंग मोर अटेंशन। एक साइकिल बन चुका है, बिकॉज दे आर गेटिंग मोर इन्वेस्टमेंट, मोर मीडिया कवरेज, दे आर गेटिंग मोर अटेंशन। बिकॉज दे आर गेटिंग मोर अटेंशन, मोर पीपल आर वॉचिंग दी स्पोर्ट्स, देर इज मोर इन्वेस्टमेंट इन दी स्पोर्ट्स। सो ये सारा रीजन है। जैसे आप देखो, तुम ज़्यादा लोग देख रहे हैं, तो पीपल आर विलिंग टू, एड्स में भी ज़्यादा पैसा खर्चने को लोग तैयार हैं। इनको ज़्यादा टीवी चैनल्स भी इनको ज़्यादा पॉपुलराइज करने को तैयार हैं। तो सब कुछ आपस में एक साइकिल सा बन गया है। दीज 3 पॉइंट्स, कैन यू राइट द 3 पॉइंट्स, मेरे को बताओ टफ ऐसे, कैन यू राइट दीज 3 पॉइंट्स एज रीजंस? यस, ओके। चलो अब मेरे को बताओ ये नेगेटिव है डेवलपमेंट के, positive development है। I would ask you again to consider it a negative development. This one I'll say be emotional also. I think it's better to go negative only here. ठीक है, इसको नेगेटिव रखना ही बेटर रहेगा, इसमें पॉजिटिव मत लिखना। मैं वैसे भी बोलूँगा योर एग्जामिनर माइट ऑल्सो बी अ वुमेन, एंड आई थिंक इट इज़ अ नेगेटिव डेवलपमेंट, वैसे भी बोलूँगा, और तुम्हारे लिए भी बेटर रहेगा लिखना। ठीक है, अच्छा नहीं लगता, ये कहाँ से पॉजिटिव है कि फीमेल्स को टेंशन कम मिल रही है, ये कहाँ से हुआ है? सो पहले तो इसका प्रॉब्लम है
कि फीमेल्स को क्या नहीं मिल मतलब करियर नहीं देख रही. Many don't consider sports as a career because of this. So there are many talented girls who do not consider sports as a career because of this. क्योंकि उनकी स्पोर्ट्स को इतनी अटेंशन नहीं मिलती. तो उनकी ठीक है. और फिर उनकी स्पोर्ट्स में लो सैलरीज हैं. तो इसके कारण क्योंकि उनकी स्पोर्ट्स को इतनी अटेंशन नहीं मिल रही तो उनकी सैलरीज कम है. सो मैनी फीमेल्स और मैनी गर्ल्स डू नॉट कंसिडर स्पोर्ट्स एज अ करियर. तो उसको करियर की तरह नहीं चुन रही हैं बिकॉज उनको लगता है उनसे उनका घर नहीं चलेगा बिकॉज इट्स लो पेड जॉब्स हैं. मतलब वहाँ पे इतनी अच्छी सैलरीज नहीं है, इतना अच्छा फंडिंग नहीं है. सो दैट वुड बी योर फर्स्ट नेगेटिव. कैन समवन टेल मी अ सेकंड नेगेटिव ऑफ दिस? पहला पॉइंट है फीमेल्स आर नॉट ज्वाइनिंग कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स बिकॉज ऑफ दिस रीजन. दे डू नॉट कंसिडर स्पोर्ट्स एज अ करियर बिकॉज वहाँ पे कम अटेंशन है एंड बिकॉज ऑफ लेस अटेंशन there's a huge pay gap between men and women. ठीक है. women earn considerably lower than men and इसके कारण they are not considering it as a career. इस बार BCCI ने बहुत अच्छा करा जब women world cup जीती. they were paid equally as men. जितना men को दिया था उतना ही दिया. everyone got 5-5. yeah, it was very good. चलो नेक्स्ट बताओ. इसका और क्या नेगेटिव है कि women को इतनी अटेंशन नहीं मिल रही women स्पोर्ट्स को? Quickly, anyone? बताओ. So they might have the less ability as compared to the man. इसका नेगेटिव हाँ जी. उनकी जैसे स्पोर्ट्स कि को. सर आपने हाँ, रेस का एग्जांपल दिया कि बॉयज ज्यादा तेज भाग वो तो सकते हैं एज रीजन है ना कंपेयर कि टू गर्ल्स. उनकी स्पोर्ट्स को लोग देख नहीं रहे. ठीक है. क्योंकि लोगों को लगता है कि उनकी एबिलिटी कम है. अब इसका नुकसान क्या हो रहा है कि उनकी स्पोर्ट्स को इतनी अटेंशन नहीं मिल रही. उसका नुकसान बताना है कि उनकी स्पोर्ट्स को इतने लोग देखते नहीं है. तो इसका क्या नुकसान है ये बताओ. गर्ल्स की स्पोर्ट्स को लोग कम देखते हैं. तो वहाँ पे मीडिया वालों को इतने पैसे नहीं मिलते. तो उनको भी कम सैलरी मिलती है. मतलब लोग कहते हैं कि तुम इतने पैसे लाते ही नहीं हो. क्योंकि मेल स्पोर्ट्स को ज़्यादा लोग देखते हैं, ज़्यादा एड रेवेन्यू आता है. ज़्यादा एड रेवेन्यू आता है तो मेल प्लेयर्स की सैलरीज भी ज़्यादा होती हैं. अब मेरा यही पॉइंट है कि अब उनको कम लोग देखने के क्या नुकसान हो रहे हैं. कम लोग देखने के नुकसान बताने हैं, ये रीजंस नहीं बताने. ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਪੋਰਟਸ ਵਗੈਰਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਨਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ वो तो ਲਾਈਕ पहला ਨਾ ਦੇਖੇਗਾ. है ना. वो तो पहला पॉइंट ही यही है कि वो स्पोर्ट्स एज अ करियर नहीं चूज करती हैं. बंद तो नहीं होंगी. मतलब कम चूज करती हैं, कम पे में भी चल रहा है. पर हाँ, दे डोंट कंसिडर. तो मैनी गर्ल्स डू नॉट जॉइन स्पोर्ट्स एज अ करियर. और क्या नेगेटिव होगा? लेस इनकम. वो तो वो उसी आ गई ना, लेस इनकम वगैरह उसी में लिख देंगे ना. ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਘੱਟ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੋਊਗੀ ਯੰਗ ਗਰਲਸ ਤੋਂ. हाँ, दे हैव लेस ऑफ. वही है तो वही है ना करियर वाला पॉइंट कि वो करियर नहीं चूज कर रही. तो इनिशियल उनको प्रॉपर कोचिंग नहीं मिलती है. हाँ, मतलब उनको प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं मिल रही. ठीक है चलो, तुम एक काम कर दो, इसको अलग पॉइंट ले लो. पहला पॉइंट ले लो कि गर्ल्स आर नॉट एनकरेज टू जॉइन एज अ करियर. सेकंड पॉइंट अलग से बना दो कि उनको पे नहीं प्रॉपर मिलती, उनको अच्छी अच्छी फैसिलिटीज नहीं मिलती जो मेन को मिलती है. ठीक है. तो हालांकि दे माइट बी एथलेटिकली बेटर, दे डोंट गेट द सेम ट्रेनिंग, दे डोंट गेट द सेम लाइक कोचेस नहीं उनको उस क्वालिटी के मिलते, उनको सेम फैसिलिटीज नहीं मिलती. तो अब तुम देख लो जैसे अमेरिका. बट America wins a lot more medals than India in Olympics. Tell me the reason why. तुम्हें क्या लगता है हम उनसे ज्यादा बुरे हैं एथलेटिकली? ये रीजन है कि कोई और रीजन है बताओ. ओलंपिक्स में वो हमारे से ज्यादा गोल्ड मेडल क्यों लाते हैं? और ज्यादा तो पता है बहुत ज्यादा नहीं लाते हैं, बहुत ज्यादा लाते हैं. उनके 120 गोल्ड मेडल होते हैं, हमारा एक भी नहीं था इस बार. तो क्या रीजन है बताओ. अपॉर्चुनिटी. क्या अपॉर्चुनिटी बताना अच्छे से. सर गवर्नमेंट उनको फंड करती है. हाँ, उनके पास ज़्यादा अच्छी फैसिलिटीज़ होती हैं. राइट, दैट वाज व्हाट यू आर सेइंग राइट. उनको ज़्यादा अच्छी यस. फंडिंग मिलती है, उनको ज़्यादा अच्छे फंड्स मिलते हैं. उनको जाना है तो उनको उसके लिए स्पॉन्सरशिप्स मिलती हैं, उनको गवर्नमेंट पैसे देती है, उनका खाने का करती है, उनको कोई टेंशन नहीं है. हमारे यहाँ पे वही बंदे को अपना घर भी चलाना है, उसको कोई गवर्नमेंट से फंडिंग नहीं मिल रही, उसको फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही, उसको वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही. रात को जैसे उसको खेलने के लिए
ग्राउंड्स नहीं है, ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो यही पॉइंट है गर्ल्स और बॉयज़ में भी। गर्ल्स इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती स्पोर्ट्स में क्योंकि उनको इतनी अच्छी क्या नहीं मिल रही, फैसिलिटीज। फैसिलिटीज नहीं मिलती। तो तुम ये पॉइंट लिख सकते हो, दे डोंट परफॉर्म एज वेल क्योंकि उनको इतना अच्छा सपोर्ट नहीं मिल रहा इसके कारण। तो हालांकि दे माइट बी बेटर देन मेल्स। अब मैं तुम्हारा, जैसे तुम मानते हो ना कि इंडियंस आर बेटर देन अमेरिकन, हम भी बेटर है, मैं तो मानता हूँ। पर हमें इतनी अच्छी क्या नहीं मिलती, अपॉर्चुनिटीज, इतनी अच्छी फैसिलिटीज नहीं मिलती, नॉट अपॉर्चुनिटीज, फैसिलिटीज नहीं मिलती, इसलिए हम परफॉर्म नहीं कर पाते। मैं गर्ल्स का भी सेम रीजन दूंगा, ये नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है कि दे आर नॉट परफॉर्मिंग दैट वेल इन स्पोर्ट्स बिकॉज दे आर नॉट गेटिंग द सेम सपोर्ट जितनी अच्छी मेल्स को मिलती है, इतनी अच्छी फैसिलिटीज नहीं मिल रही, इतनी अच्छी वो नहीं मिल रही। दैट इज व्हाट यू शुड बी राइटिंग हियर। कैन यू राइट दिस पॉइंट? Not able to perform Yes. up to their abilities because of lack of support. ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटीज कह लो। ठीक है, लास्ट पॉइंट मैं बोलूंगा कि ये ना अगेन जेंडर स्टीरियोटाइप को प्रमोट रीइंफोर्स कर रहा है। देखो पहले तो ये था ना, अब ये रीइंफोर्स कर रहा है कि विमेन आर नॉट, ये कर रहा है जेंडर स्टीरियोटाइप को कि विमेन आर एथलेटिकली, मैन आर बेटर देन फीमेल। तो इसको रीइंफोर्स कर रहा है, इस व्यू को ये रीइंफोर्स कर रहा है और पक्का कर रहा है मन में, क्योंकि इनको इतनी अटेंशन नहीं मिलती। तो हमें हमें ये फीलिंग आ रही है मन में कि विमेन नहीं खेल सकती स्पोर्ट्स, हमारे मन में और ये बात बैठी जा रही है। तो तुम ये बोल सकते हो कि इस चीज़ को ये रीइंफोर्स करता है क्योंकि लैक ऑफ अटेंशन का लोगों को ये फीलिंग दे रहा है कि विमेन इतना अच्छा नहीं है, इसलिए उनको नहीं इसलिए उनको स्पोर्ट्स को दिखाया नहीं जा रहा टीवी पे, क्योंकि विमेन इतना अच्छा नहीं खेलती, मेन से कम होती हैं। तो इट्स प्रमोटिंग, इट्स रीइंफोर्सिंग। रीइंफोर्स का मतलब है दोबारा हमारे मन में ये बात डाल रहा है, लैक ऑफ अटेंशन टू women's sports is reinforcing the view that women are inferior than men in regards to sports. So it's मेथडली। reinforcing the view that women are inferior to men in sports. So हमारे मन में दोबारा बात बैठ रही है, and it can also spill over to other areas of life, can also spill over to other areas, like बाकी जगह भी हमें ये फीलिंग आने लग सकती है कि women are inferior to men. ठीक है, and women are inferior like in business or other areas like that, like in business or education. चलो, so I hope this essay is clear, pretty difficult, but again हमारी approach same ही रहने वाली है जो पहले थी। We are again going one-sided and reasons. I want you to write this essay, ये वाला men and women वाला। I'm going to share this, you're going to write this essay। We have discussed the points, I extended the class a little bit, I could not because it was such a tough essay and I wanted to cover it well. So I am sorry for extending the class, but you have to write this essay and submit it to ma'am or me. Okay, so I'm going to share this in the group. We'll delay the reading class by 15 minutes. I have some work. Okay, so 15 minutes के लिए हम delay कर रहे हैं। 5:45 पे I'll take the reading class. This class is over now and we'll continue tomorrow. Okay, for writing. Okay, anyone has any doubts? Okay, I want to tell you something. Even if you're not paid, don't worry. Write the essay. भेज देना, ठीक है। मुझे मुझे पता तो चले तुम्हें कितना कितना समझ में आया मेरा पढ़ाया। मुझे तो वो देखना है कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ कि नहीं। आई डोंट फील गुड एज अ ट्रेनर until I see you improve. You don't know how important it is for me to know what you learned. ओके, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, दैट वे आई कैन इम्प्रूव माई सेल्फ। अगर तुमने बुरा ऐसे लिखा तो तुम्हारे को तो समझाऊंगा, खुद को भी समझाऊंगा कि कैसे ज़्यादा अच्छा पढ़ाना है। ठीक है, सो दैट इज आई वांट टू आस्क यू दैट। ओके, सो विल एंड इट हियर। सर। ओके, थैंक यू सर। यू वेलकम।